In the last class, hello. Good evening, dear students. Good evening, sir. Good evening. Now all of you are happy Yes, sir. Yes, sir. or still unhappy? Nahi, sir. Good. God may bless you to be much more happy. ठीक है. From tomorrow, your offline class is now going on, na? Yes, sir. Yeah, be ready for that. How much you have taken enjoy being yourself at home? Now, take the much more enjoy coming in the offline class. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. Lastly, in SST, what we were getting, what we were studying, Democracy. what discussion was going on regarding democracy? Why democracy has been completed, na? Yes, sir. Only debating merits of democracy has been completed. Arguments against the democracy has been completed. Arguments against democracy have been completed. Or this point has not been completed. Anyone? जी Sir, 3 points are completed. हाँ, फिर से बोलिए. सर सिर्फ 3 पॉइंट तक ही कंप्लीट हुआ था. Arguments against democracy में. Yes, sir. Yes, sir. Okay, once again I am going to revise these all the points. Arguments against democracy का मतलब क्या है? का मतलब है what are the demerits of the democracy? Understood or not? What are the defections with the such a form of the government? Merit and demerit is found with each and everything and each and everyone. Understood or not? Here the same thing you can see. What are the demerits of democracy? Even though the most of the countries of the world have chosen the better form of the government, democracy as the better form of the government, everywhere there is a same principle. Most of the politicians have now accepted, and also the most of the delegates of the countries have accepted that the democracy is the best form of the government. But even though it doesn't give or it doesn't provide the solution of all the problems, it means even such form of the government, it means democracy can't give the guarantee for the solving out of your all the problems. It means all the problems can't be solved out in the democracy. It means somewhere on some special occasion or in many cases, it can be seen, even practically it can be experienced that the democracy is also having some demerits. It is failed. It is not the 100% successful. There are many statements have been given, many criticism now democracy has to face.
Why democracy doesn't provide the solution of all the problems? I mean to say, what are the arguments? Arguments means what are the points that will describe about the demerits, about the failoreness of democracy. What can or what has been said against democracy or the democratic form of the government? What the points have been found out by our own politicians, or you can say highly educated or the great personality or the scholars, what they have criticized regarding democracy, what they have quoted against democracy, what were there the arguments. If we go through the one by one point that has been quoted against the democracy, that will prove that really the democracy is not the 100% the best form of the government. It has also many defections, or it had to also pass through the many errors. Still having much more requirement to be improved. अभी भी डेमोक्रेसी में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट्स लाना बाकी है. ऐसा नहीं है कि या ऑल एक्सेप्टेबल तो है, लेकिन सारे समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाता. कई तरह के समस्याएं डेमोक्रेसी को भी फेस करना पड़ता है. डेमोक्रेसी, द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट टू विल हैव टू फेस द मेनी चैलेंजेस. इवन इट हैज टू क्रॉस द वैली ऑफ fire as the practical experiments on the basis of its usuality. Many politicians have given the many arguments against the democracy. The first argument that has been quoted or stated against the democracy, that is the here the leaders in the democracy keep on changing. आपने बहुत बार देखा होगा, many times you have seen, क्या सीन आपने क्या देखा है कि डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी आती है, कांस्टेंट नहीं बन पाता है, कांस्टेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हो पाती, इंस्टेबिलिटी आती रहती है हमेशा. प्रत्येक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल पर आप देखते होंगे कि लीडर्स जो हैं वो बदलते रहते हैं. द लीडर्स कीप चेंजिंग का मतलब है कि दे नाउ लीव दिस पार्टी एंड ज्वाइन द अदर पार्टी. The people have liked some persons. If they have liked some particular party, political party, due to the impression, due to the personality of the particular leaders, or if the leaders change their positions or join some other parties, in that very condition, what will happen? It will be said that here the wishes or the desires of the people, common people, have been killed. मान लो आप बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हो, बीजेपी पार्टी में आपकी आस्था है, बीजेपी पार्टी आपको अच्छी लगती है. क्यों? क्योंकि इसमें 2-4 लीडर्स बहुत आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट, और दे आर डूइंग, दे आर क्या कर सकते हैं, डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल बेटरमेंट, दे आर डूइंग कर सकते हैं कि बेटरमेंट फॉर द नेशन. They are having really the merits. Or if they join all of sudden the another political parties by leaving the earlier one,
So it means it is the killing of your belief in the BJP party of your nation, because you had the earlier the firm belief in BJP, but as soon as the leaders now change their party, it means your belief has to been killed. आपके विश्वास का भी कत्लेआम हुआ है. Leaders don't respect the feelings of the people. Wherever they get the benefits or the advantages, they say goodbye to the earlier, the previous party, and join the some others. Leaders keep changing, बदलते रहते हैं. They don't give the constant form of the government. This is the greatest demerits of the democracy. Getting? Hello? Yes, sir. देखिए, सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें लीडर्स हमेशा बदलते रहते हैं. ये सबसे बड़ा इनका डिफेक्शन देखने को मिलता है. यहाँ पे लीडर एक जैसा नहीं बने हुए होने की वजह से ये कांस्टेंट गवर्नमेंट नहीं दे पाते, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है आपके देश में. मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बताया होगा आपको कि गवर्नमेंट को आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को देखिए, झारखंड स्टेट को देखिए, है ना. कई बार यहाँ पे सरकार का गिरना और सरकार के फॉर्म में आना, आखिर ऐसा क्यों है? उसी तरह से दूसरे अन्य पॉलिटिकल पार्टी की भी स्थिति आपके क्या बोलते हो बिहार में भी देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर लीडर्स जो है चेंज होते रहते हैं. नतीजा ये है कि पॉलिटिकल गतिविधियां जो है कांस्टेंट नहीं बनी हुई रहती है. किसी भी पार्टिकुलर स्टेट को एक कांस्टेंट गवर्नमेंट नहीं मिल पाता है, और जब कांस्टेंट गवर्नमेंट नहीं मिल पाता है तो तरक्की भी लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाती है, रह नहीं पाती. आज अगर बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट है तो नेक्स्ट सुबह आपको दिखाई देती है कि कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट आ गई. अब कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट को भी दे विल आल्सो टेक द लॉन्ग टाइम in experiencing or judging all the situation, and then after they will take the decisions. So in taking the decision it will take the long time. इस तरह से हमारे देश का एक लंबा समय गुजर जाएगा, ऐसे ही यूं ही यूजलेसली पास हो जाएगा. इस तरह से एक कांस्टेंट गवर्नमेंट नहीं दे पाना, लीडर्स का बदलते रहना, सरकार का अस्थिरता होना हमारे देश की तरक्की को कत्लेआम करती है, देश की तरक्की को बाधित करती है, देश की जनता का हित भी नहीं हो पाती है, वेलबींग भी नहीं हो पाता है. अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम जो रूलिंग पार्टी है, अगर वह किसी तरह का मान लो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैकेंसी निकाल रखी है कोई खास पार्टिकुलर टर्म एंड कंडीशन पे, जैसे ही सरकार बदलेगी या जैसे ही दूसरे अन्य लीडर्स का आगमन होगा या दूसरे अन्य गवर्नमेंट का आगमन होगा, यह टर्म और कंडीशन बदल भी सकता है. पीपल का वेल बीइंग संभव नहीं हो पाएगा, यानी जनता का कल्याण यहाँ पे रुक जाती है फॉर द टाइम बीइंग. अंडरस्टूड दिस? बोलिए, समझ में आया जी? हाँ, Yes, sir. ऑल ऑफ यू गॉट? लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी. कैसे इंस्टेबिलिटी को लीड करता है? यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लीडर्स बदलते रहते हैं. समझ गए कि नहीं? यहाँ लीडर्स बदलते रहते हैं, सरकार इंस्टेबिलिटी को फेस करता है. सेकेंड पॉइंट है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. बहुत अच्छा पॉइंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, याद रखिएगा. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले. देयर इज नो स्कोप फॉर द मोरल और द मॉरलिटी फॉर पीपल. यहाँ पे जनता के मॉरलिटी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है. देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी.
यहाँ पे नैतिकता का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है, आदर्श आइडियलिस्टिक भाव का, फीलिंग्स का कोई यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता है ना। आइडियलिस्टिक फीलिंग्स आर ऑलवेज क्या होता है, किल्ड की जाती है, हमेशा यहाँ पर कत्लेआम होता है आदर्शवादी विचारधारा का। जो हाईली क्या कह सकते हैं आइडियलिस्टिक मैटर है, उसको कत्लेआम किया जाता है। कैसे? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पावर प्ले और द क्या है, कंपटीशन है। का मतलब क्या? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले का मतलब है कि जिसके हाथ में लाठी होगी उसी की भैंस होगी। आपको कहावत सुने हो ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी मनी एंड मसल पावर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। मनी एंड मसल पावर से मतलब क्या है? मनी एंड मसल पावर का मतलब क्या है कि दोज लीडर्स वो हैविंग द पावर और कह सकते हैं कि दोज हु आर पावरफुल आर हैविंग मनी कैन गिव द श्योरिटी टू विन द इलेक्शन और कम इनटू द एग्जिस्टेंस और द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अंडरस्टूड और नॉट? जो लीडर के पास जितनी ही ताकत है, जो जितना ही पावरफुल है, जितना ही पैसे वाला है, वह इलेक्शन किसी भी तरह से डर्टी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए वह सरकार बना ही लेगी। डेमोक्रेसी इज नथिंग बट ऑल अबाउट द political competition and power play. It means the political parties will have to show their own the strength or the power at the time of winning the election, at the time of conducting the election. You can take the example of the Mexican government. वहां का PRI जो पॉलिटिकल पार्टी है, कई बार उसने इलेक्शन कंडक्ट करती है और जीत भी जाती है। एवरी 5 और 6 ईयर्स पे इलेक्शन कंडक्ट तो होता है सही टाइम पे, लेकिन जनता के इच्छाओं का ख्याल थोड़ी ना रखा जाता है। पीपल्स चॉइस और द डिजायर्स आर ऑलवेज निग्लेक्टेड। दे आर प्रेसाइज टू कास्ट देयर वोट्स इन द सपोर्ट ऑफ द PRI. Even the government employees were pressurized to advertise the political agenda or the political issues, and they were pressurized to convince the common people to cast the opinions or the votes in favor to PRI. So here the morality has been now killed. It means there is no scope for the morality while conducting the elections by the PRI in Mexico. Getting, dear students? Hello? Yes. Getting? Yes, sir. बोलो जी। Yes, sir. किसी को कुछ कहना है? बोलिए। डेमोक्रेसी ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन होती है। कई पार्टियां जो है डेमोक्रेसी में अपने अपने इश्यू को लेकर के प्रचार प्रसार करती है जनता के बीच में। अंडरस्टूड और नॉट? इसके बावजूद भी इलेक्शन कंडक्ट जब होना होता है तो क्या करते हैं लोग? दे यूज टू फॉलो द डर्टी ट्रिक्स। इन लोगों ने बहुत ही इलीगल ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, वोटर्स को प्रेशराइज करते हैं। जिनकी पार्टी मजबूत होती है, जिनके एक्टिव मेंबर्स काफी मजबूत होते हैं, वे बाय फोर्सली इलेक्शन को कंडक्ट करने में, इलेक्शन को जीतने में सफल होते हैं। इट मीन्स दे यूज द मनी एंड मसल पावर इन द इलेक्शन। दिस इंश्योर्स व्हाट? दिस इंश्योर्स व्हाट? ये क्या बताता है कि डेमोक्रेसी इज नथिंग बट ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। जो पावर का गेम है, जो पावर को प्ले करेगा, जो पावर का इस्तेमाल करेगा, जो शक्ति को दिखाएगा, वन हु विल क्या exhibit one's power or the strength before the people and having the many active members to do the illegal act or the illegal practices
while conducting the election, in that very condition, the political party will win the election. It means they will form the government and they will come into the existence of the government. That is why this is said that political parties are nothing but all about the political competition and the power play. Here there is no scope for the morality. जनता के इच्छाओं का विश्वास नहीं रखा जाता है, जनता के इच्छाओं का कत्लेआम किया जाता है। मान लीजिए कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी मान लो इलेक्शन कंडक्ट कर रही है, बीजेपी और दूसरे अन्य लीडर सामने सामने खड़े हैं। पहले बीजेपी की गवर्नमेंट रन कर रही थी किसी पार्टिकुलर स्टेट या पूरे होल कंट्री में। आप बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी के आप किसी लीडर को वोट देते हैं या उस लीडर को पर्सनली या इंडिविजुअली जानते हैं कि बहुत अच्छे लीडर हैं और उनके आधार पे क्या बोलते हो वोट देते हैं, और झट से वो जैसे ही इलेक्शन कंडक्ट होती है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग के समय वह पार्टिकुलर लीडर अपना पार्टी को चेंज करके दूसरे पार्टी के साथ ज्वाइन कर जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई भी बदनाम पार्टी, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी हो, तो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स बीजेपी में या बीजेपी की पार्टी कांग्रेस की पार्टी में चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस व्यक्ति को वोट दिया था वह आपकी इच्छाओं का रिस्पेक्ट नहीं किया, आपके फीलिंग्स को उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, एंड नाउ लेफ्ट द पार्टी और लेफ्ट द पार्टीज क्या बोलते हो प्रिंसिपल्स, उसने पार्टी के प्रिंसिपल से धोखा किया एंड ज्वाइन द अदर पार्टी। तो जब दूसरे पार्टी को ज्वाइन करेगा तो ऐसे हालात में क्या होगा, ही और शी विल बी लेड बाय द पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ दैट पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। वह पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल एजेंडा होगा, इश्यू होगा, उसी के द्वारा वो लीडर में चलेगा। यानी आपके द्वारा जो फीलिंग्स था कि आपके द्वारा जो सिंपैथी जो शो किया आपने किसी लीडर के प्रति, वह सिंपैथी तो नहीं रह गया। आपने सोचा था कि ये जीत करके जाएंगे या जिसे मैंने जिताया है वह अमुक पार्टी से क्या बोलते हो इलेक्शन जीत करके और क्या बोलते हो सरकार बनाएंगे और जनता का भला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होती है। सेम ओकेजन पे दे यूज्ड टू चेंज देयर ऑन द पोजीशन और दे यूज्ड टू चेंज देयर ऑन द क्या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा और द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो हियर देयर इज आल्सो द मर्डर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द कॉमन पीपल। हम कह सकते हैं कि जनता की इच्छाओं का यहाँ पे मर्डर होता है। आप जिस भाव से दिए थे किसी व्यक्ति को वोटिंग, अपना सपोर्ट ओपिनियन दिए थे, वह ओपिनियन लेकर के दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ, दूसरे अन्य पार्टी के साथ, रॉन्ग पर्सन के साथ जाकर मिल जाता है। तो ऐसे हालात में क्या आप एक अच्छे लीडर को गवर्नमेंट के रूप में लाते हैं? बताइए, नहीं। गेटिंग समझ में आया जी? यस सर। दीपशिखा, गेटिंग? Yes, sir. थर्ड पॉइंट था कि सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिले। बहुत अच्छी बात है। आप देखते हो कि डेमोक्रेसी में कोई भी फैसला, कोई भी जजमेंट, कोई भी वर्डिक्ट एक दिन में, 2 दिन में अचानक नहीं दे दिया जाता। ऑन द स्पॉट द डिसीजन इज नॉट हियर डिक्लेयर्ड, इट टेक्स द लॉन्ग टाइम because for the making out the final decision, the decision makers have to consult the many discussions, the many meetings, or the many assemblies, or the many what you can say the persons. After then the final decision is made out or publicly. Now सुन, जनता के सामने पब्लिकली तभी आता है वो डिसीजन जब बहुत से टेबल से होकर गुजरती है। एक ही डिसीजन, एक ही क्या बोलते हो जो फाइनल डिसीजन है वो कई टेबल से होकर गुजरती है। मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी। मेनी क्या कह सकते हैं मीटिंग्स और द असेंबलीज वर नाउ ऑर्गेनाइज्ड। मेनी टाइम्स द पर्सन्स गो inside the fact or the what you can say the matter, उस इशू, उस तथ्य के
अंदर तक तहकीकात तक जाने के लिए डिसीजन मेकर्स को कई प्रोसेस से, कई टेबल से होकर गुजरना पड़ता है। एंड ओवरऑल दिस टेक्स द लॉन्ग टाइम एंड दैट इज वाई ऐसा मेनी ओकेजन्स इट हैव बीन सीन, कई बार ऐसे देखे भी गए हैं कि द पीपल आर वेटिंग फॉर द फाइनल डिसीजन or the final judgment or the verdict for the long years. Even for some persons, the what you can say, the true or the honest person has been captured or somehow now involved in the wrong practices by the government, arrested by the administrators. Understood or not? And the court has presently now made him accused. अब उसके विरुद्ध तहकीकात चलती है कि क्या सच्चाई है। यह तहकीकात करते करते कभी कभी ऐसे भी लगते हैं कि पूरा जीवन काल उसका जेल के कोठरी में बीत जाता, बट इवन दो द फाइनल डिसीजन डजंट कम और इफ द फाइनल डिसीजन कम्स आउट आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, तो इतनी लंबी टाइम लॉन्ग डिले होती है कि जनता का विश्वास, द पीपल डोंट हैव अ व्हाट यू कैन से रियली द ट्रस्ट इन the laws or the rules and regulations, और कह सकते हैं verdict or the judgment announced by the judiciary or you can say decision makers. तो डेमोक्रेसी का ये थर्ड जो है डिफेक्शंस है कि यहाँ पर डिसीजन जो है ना, इट टेक्स द लॉन्ग टाइम, इट हैज मच मोर डिले, ये बहुत डिले करता है बिकॉज मेनी टेबल से, मेनी पर्सन से, मेनी हेड से, मेनी असेंबली से, मेनी मीटिंग से गुजरना पड़ता है। नहीं, जब ये होता है कि इट टेक्स द लॉन्ग टाइम। अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज द ग्रेटेस्ट डिफेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अंडरस्टूड दिस? बोलिए। नहीं जी, समझ में आया बाबू? हाँ, गेटिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. आपने सेनारी हत्याकांड का नाम सुना होगा, जहानाबाद सेनारी हत्याकांड का नाम सुना है? बोलो। औरंगाबाद में, क्या बोलते हो, बिहार के औरंगाबाद में मदनपुर के पास 12 नरसंहार हत्याकांड सुना है? ऐसे कई, क्या बोलते हो, कांड है, ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं, बड़े बड़े इंसिडेंट, जिसमें एक बार में 150 व्यक्तियों को कत्लेआम कर दिया गया एक पार्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, और जो व्यक्ति नहीं भी संलिप्त था उस मर्डर केस में, इस मास मैसेकर में, इवन दोज पर्संस टू हैव बीन नाउ कैप्चर्ड और अरेस्टेड, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया और जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया, यह कह करके कि जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि आप इनोसेंट हैं, तब तक आपको जेल के कस्टडी में यानी पुलिस की हिरासत में या जेल के सलाखों के पीछे रहना होगा। ऐसा करते करते किसी लोगों की तो पूरी जवानी ही बीत गई जेल के पीछे। मौत आने के बाद मालूम चला कि उनका डिसीजन आया कि ही और सी वाज इनोसेंट। अब बताओ, क्या आपको लगता है, यू फील दैट यू विल हैव 100% the confirmation or the belief or the trust in such a form of the government where the decision takes a very long period of the time? You are not the guilty, you are not accused one, but somehow you have been now arrested, and the police have now claimed that you are guilty. तो कोर्ट को यह सिद्ध करते करते या कोर्ट में आपके केस को सिद्ध होते होते आपको एक अच्छी खासी लंबी टाइम गुजरना पड़ता है। You lost the very important period of your life. In that very condition, what will happen? बताइए तो जरा। आप अपनी जिंदगी का अहम दिन तो आपने खो दिया जेल के पीछे, तो क्या ऐसे देश के गवर्नमेंट में आपको विश्वास होगा? फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में यू विल बिलीव? बताइए, क्या आपको अच्छा समझ में आएगा इसके विषय में? डू यू फील द हेल्दी? अपने आप को अच्छा महसूस करोगे ऐसे हालात में? बताइए। गेटिंग जी? ऑल ऑफ यू गेटिंग और नॉट?
नेक्स्ट पॉइंट देखो, इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं लीडर्स, उम्मीदवार, जिस कंस्टिट्यूएंसी से चुन करके रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार के फॉर्म में आते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टी और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के फॉर्म में आते हैं, दे डोंट नो, इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट और द चॉइस ऑफ द पीपल। नतीजा ये होता है कि दे मेक द बैड डिसीजंस। The selected leaders, the elected leaders or the representatives don't know the best choices of the people, what they like or what the people don't like. In that very condition, the rulers or the elected members or the elected persons or the representatives take the wrong steps in order to run the government, which may not be favorable to the people or which may not be ideal for the people. Getting? Tell me now. समझ में आया जी? Yes, sir. समझ में आया बाबू? ऐसे हालात में आपको क्या लगता है, डेमोक्रेसी में जो जीत करके आते हैं इलेक्टेड मेंबर्स या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं, रिप्रेजेंटेटिव जनता के द्वारा सिलेक्टेड पर्सन जो गवर्नमेंट के फॉर्म में आते हैं, वो रियल जनता के चॉइसेस को, जो रियल जनता के जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स है, दे डोंट नो अबाउट द रियल रिक्वायरमेंट्स और द नीड्स ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल। consequently they take the wrong steps while they are in the form of the government. जनता का रियल रिक्वायरमेंट ही उन्हें पता नहीं है, उनकी इच्छाओं का ही उन्हें ख्याल नहीं है, तो ऐसे हालात में जो डिसीजन लेंगे वो तो गलत ही लेंगे ना। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, या कह सकते हैं कि हैविंग द मच मोर डिफेक्शन विद द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग त्रुटि है, स्ट्रॉन्ग डिफेक्शन है कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स है, जो फ्यूचर मेकर्स है, जो भाग्य विधाता है, वह जनता की इच्छाओं का ही ख्याल नहीं रख पाता है। दे हैव नो, क्या कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द पीपल, about the desires or the choices of the people. In that very condition, whatever the step taken by them used to be proved very wrong and not the favorable on behalf of the development of the people or the development of the country or the behalf of the well-being of the people. Getting? All of you are getting or not? Anji? Yes, sir. Today's students are very inactive. All of you appear to be very inactive. क्या प्रॉब्लम है? Not getting or unable to understand. समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो जी, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं? संदीप कुमार वर्मा, निखिल राज, Yes, sir. Yes, sir. are you not able to understand my lecture or whatever I want to express? समझ? Yes, sir. समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल क्राई की कंपटीशन। देखिए बहुत अच्छी बातें हैं, आर्गुमेंट्स अगेन डेमोक्रेसी है। आर्गुमेंट्स का मतलब है ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं, ऐसे लॉजिक दिए जा रहे हैं जो इस बात को प्रूव करेगा कि डेमोक्रेसी इज नॉट द
100% better form of the government. It has to the defection, इससे भी कमजोरी है, इसके भी त्रुटियां हैं, इसके भी क्या कह सकते हैं चैलेंजेस है. डेमोक्रेसी टू हैव टू फेस द चैलेंजेस. इससे भी कई चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, इसमें भी कई त्रुटियां हैं. इट डजंट मेक आउट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. ये सारे समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं दे पाता है. डेमोक्रेसी लीड्स टू द करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप डेमोक्रेसी में आप जानते हो कि डेमोक्रेसी में जो भी लीडर्स, जो भी रूलर्स आते हैं एग्जिस्टेंस में, गवर्नमेंट के फॉर्म में आते हैं, दे हैव टू फेस द इलेक्शन. उन्हें इलेक्शन ही फेस करना पड़ता है. एंड एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन दे यूज टू मेनी डर्टी ट्रिक्स, illegal or the wrong practices. Obviously, if they face the wrong tricks or the illegal practices, so there is having the much more chance to be corrupted. It means the such form of the government can't be set free from the corruption. यह नहीं कहा जा सकता है जब ऑलरेडी आप गलत रास्ते को ही चुन करके आए हो. इफ यू हैव कम इनटू द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बाय पासिंग थ्रू द रॉन्ग क्या बोलता प्रैक्टिसेज और द क्या कह सकते हैं कि डिफेक्शंस के रास्ते से, रॉन्ग क्या बोलते हो त्रुटियों से होकर के ही आए हैं आप, तो आप स्वाभाविक है ना कि करप्शन से जब आए हैं, करप्शन को फेस करके आए हैं, तो आप तो करप्टेड होंगे ही होंगे. इसलिए यहां पर यह कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन कंपटीशन होती है वो करप्शन को लीड करता है. का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्शन को जीतने के लिए, इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन, द रूलर्स और द क्या कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, फ्रॉम द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज, दे यूज द मेनी डर्टी ट्रिक्स और द रॉन्ग प्रैक्टिसेज. दैट इज व्हाई देयर इज पॉसिबली or there is having the much more chance of the corruption. Understood this? Yes, sir. Now see more. Another point देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स दिया गया है डेमोक्रेसी के विषय में, और ये बताता है कि चाहे कितना भी बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, इसके बावजूद भी आपको इस बात का गारंटी नहीं दी जाएगी कि इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट you are taking the breath. That will never give you the certainty or the surety to be better. और कह सकते हैं कि 100% it will not make or the fulfill the desires, or you can say complete the choices of the people. यहाँ पे जनता के 100% इच्छाओं का फुलफिल नहीं हो पाता है. 100% उसकी इच्छाओं के अनुसार गवर्नमेंट नहीं चल पाती है. कई इसे एरर से फेस करना पड़ता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कई डिफेक्शन और कई त्रुटियां देखने को मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो. साधारण जनता को तो पता ही नहीं है कि व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट. कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल डोंट हैव the better understanding or the knowledge about their own the goodness. उनकी अपनी अच्छाई के विषय में पता ही नहीं है. साधारण जनता को, एकदम बिल्कुल ऑर्डिनरी पीपल को, जो साधारण बेचारा दिन भर काम करता है और किसी तरह से 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करता है, उस इंसान को अपने बेटरमेंट के विषय में क्या ख्याल है बताइए? वो क्या समझ पाता है? सुबह किसी तरह होता और फिर शाम किसी तरह होता बेचारा का. दिन रात थ्रू आउट डेज एंड नाइट such people are engaged in maintaining the 2 times bread and butter. They don't know either they are getting the fresh water, adulterated food, adulterated medicines, either they are getting the pollution free life, either they are living the healthy atmosphere, the surroundings around them
either favorable or not, who is ruling over them and how they are being ruled. They don't know about these all the things. So in that very condition, who will take the responsibility of taking care of the such common people, or the shaping their the decision or the opinions or the goodwill or the well-being of such people? Bataiye. The rulers are having the responsibility, na? One who has come into the existence of the government having the much more responsibility to take care of the such persons or the ordinary people or the common people of our country or the any other country wherever there is a democratic form of the government. What is the goodness or what is the wrongness? Only rulers will have to keep it in their head. What the steps to be taken by the form of the government or the rulers or the representatives that could be helpful for the common people or the citizens. Such type of a decision can't be taken by the ordinary people or the common people. This decision has to be taken by the representatives of the rulers. तो यहाँ पर यह भी समस्या होती है कि कॉमन पीपल को नहीं पता अपने विषय में कि क्या है सही और क्या है गलत, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, व्हाट इज ट्रू और व्हाट इज अनट्रू, व्हाट इज करेक्ट और व्हाट इज इनकरेक्ट, दे डोंट नो. Simply they cast their vote or their opinion on behalf of someone. Either the person is good or bad, he doesn't know. It's the responsibility of the form of the government, or you can say the representatives or the rulers who has received or to whom the people have given the votes. उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना जिसके फेवर में जनता ने सपोर्ट किया है. जनता को, कॉमन पीपल को क्या पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या बोलते हो अट्रैक्टिव वेलबीइंग प्लानिंग होगा देश की जनता के डेवलपमेंट के लिए, और देश के डेवलपमेंट के लिए एक कॉमन पीपल को क्या पता है? बताइए. अगर होता ही तो फिर वे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते, खुद ही इलेक्शन में खड़ा नहीं हो जाते. अंडरस्टूड और नॉट? इन दैट वेरी कंडीशन हम लोग कह सकते हैं कि हियर देयर आल्सो डेमोक्रेसी फेसेस द चैलेंज. यह भी डेमोक्रेसी को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है, डेमोक्रेसी को यह भी एक त्रुटियों का सामना करना पड़ता है. अंडरस्टूड दिस? बोलिए, समझ में आया या नहीं आया जी? ये पिक्चर क्या शो कर रहा है? हाँ सर ये पिक्चर क्या शो कर रहा है? कौन सा सर जो पेज नंबर 10 में दिया हुआ है, जो ग्रीन कोट. 32 सर पेज नंबर 10. पेज नंबर इसी लेसन से रिलेटेड ना पूछ रहे हैं? यस सर. पेज नंबर कितना बोल रहे हैं? सर 10. एक्चुअली इसमें क्या चीज का पिक्चर है? सर एक मोटा आदमी ग्रीन कलर का कोट पहना है, सर उसके अंदर कंकाल है. अच्छा. ओके. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. हाँ क्या? हाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो लिखा हुआ वही ना? यस सर. यस सर. गुड. देखिए, जो आपको नीचे में जो पिक्चर में जो दिखाया गया है मुख्य तौर पे, यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसे जनता के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए. इट मीन्स आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी से रिलेटेड है. का मतलब यदि आप अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, अगर आपके यहाँ जनता के विषय में सोचती है अगर सरकार, तो जनता को किसी भी संकट आने पर गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी.
यानी गवर्नमेंट को ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि जनता का भला कैसे होगा, जनता को इस मुसीबत से कैसे बाहर निकाला जाएगा। लेकिन जहां पे जनता की इच्छाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है, जहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, जहां पे जनता की इच्छाओं का रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, जहां पे मनी एंड मसल पावर के द्वारा, या कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक की जगह पर दूसरे अन्य तरह का गवर्नमेंट का फॉर्म है, तो मुझे ये बताइए कि वेयर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल विल नेवर बी एक्सपेक्टेड, वहां जनता के इच्छाओं का या जनता के क्या बोलते हैं बेटरमेंट का ख्याल रखा जाएगा? कभी भी नहीं रखा जाएगा। दिस पिक्चर इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, अंडरस्टूड और नॉट? हाउ द चाइनीज गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द पीपल, जनता के प्रति चाइनीज गवर्नमेंट किस तरह से अनअकाउंटेबल है, अकाउंटेबल नहीं है, वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी उसे कुछ मतलब नहीं है। अगर बहुत बड़ा त्रासदी आ जाएगा, बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ जाएगा, या फिर आर्टिफिशियल डिजास्टर आ जाएगा, बहुत बड़ा विपत्ति आपत्ति जनता के ऊपर आ जाएगी, तो जनता को खुद ही जान बचाना होगा। गवर्नमेंट विल नेवर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटरमेंट और वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ चाइना। गेटिंग? Yes, sir. अंडरस्टूड दिस? बोलिए। Yes, sir. यही इस बात को बताता है कि हम ताकतवर हैं, अंडरस्टूड और नॉट? जनता को खुद अपनी जान बचाना होगा, हम उसके प्रति अकाउंटेबल नहीं है। देखिए पूरा क्या है उसके विषय में, देखिए बताते हैं आपको। कहता है कि यह कार्टून जो है ब्राजील से लिया गया है। कह रहा है कि कंट्री दैट हैज लॉन्ग कह रहा है कि एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप, इट इज इंटाइटल्ड द हिडन साइड ऑफ द डेमोक्रेसी। कह रहा है कि विच हिडन साइड डजंट कह रहा है कि डज दिस कार्टून डिपिक्ट एज इट नेसेसरी फॉर एवरी डिक्टेटरशिप टू हैव अ हिडन साइड। फाइंड दिस, कह रहा है कि आउट अबाउट द डिक्टेटर्स डिस्कस इन द फर्स्ट चैप्टर एंड द पॉसिबल अबाउट द कह रहा है कि सन अमेरिका इन द नियाग्रा एंड द प्रेडिक्ट माई। या देखिए सेम कंडीशन है, मैक्सिको का भी यही स्थिति है। यह जो कार्टून है इस बात को बताता है कि दूसरे अन्य फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या हिडन है, क्या छुपा हुआ है। डेमोक्रेसी में आप लॉन्ग टाइम तक किसी भी तथ्य को छिपा नहीं सकते हैं। मान लो 5 वर्षों तक अगर किसी कमजोरी को आप छिपा करके रखते हो तो 5 वर्षों में जनता समझ जाती है आपके अंदर का क्या बोलते हो एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज को। जनता को इस बात का समझदारी हो जाती है कि यह 5 वर्ष की गवर्नमेंट जनता के फेवर में थी या नहीं थी। यानी आपके अंदर के कमी लॉन्ग टाइम तक छिप नहीं सकता है, या कोई भी रूलर्स रिप्रेजेंटेटिव अगर छुपाने का भी प्रयास करेगा कि अगला इलेक्शन में हम सुधार लेंगे, तो ये 5 वर्ष का रिजल्ट उसे भोगना ही पड़ेगा। यानी जनता क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम द पीपल विल नॉट सपोर्ट टू द एग्जिस्टिंग पार्टी और द रूलिंग पार्टी। इट मीन दे विल चॉइस टू चेंज द गवर्नमेंट। अंडरस्टूड और नॉट? इट मीन्स नथिंग कैन बी हिडन फॉर लॉन्ग इन द डेमोक्रेसी। लॉन्ग टाइम तक किसी भी तथ्य को छुपा करके रखा नहीं जा सकता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ओवरऑल जो आर्गुमेंट्स दिया गया है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, वो इस बात को श्योर करता है कि चाहे जो भी हो, डेमोक्रेसी में 100% किसी भी समस्या का सोल्यूशन नहीं हो पाता है। यहाँ भी क्या बोलते हो त्रुटियों का, डिफेक्शन का, एरर्स का, या क्या कह सकते हैं वीकनेस का सामना करना पड़ता है। नहीं, जो भी डिसीजन होगा वो 100% गुड होगा ऐसा संभव नहीं है। बट ओवरऑल जो भी है डेमोक्रेसी, कोई भी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता
जितना डेमोक्रेसी होता है, और इसीलिए जनता या मोस्ट ऑफ द कंट्री चॉइस दिस फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसी के संदर्भ में नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है, आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी का मतलब है कि क्या इसके बेटर पार्ट क्या है, डेमोक्रेसी का राइट हैंड क्या है, इसका बेटर पार्ट क्या है, इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, या कह सकते हैं कि व्हाट द आर्गुमेंट्स और द लॉजिक हैव बीन गिवन और द रीजंस हैव बीन गिवन in favor to democracy, why democracy has been chosen by most of the countries, or why there is no alternative source alternative form of the government as like democracy, क्यों डेमोक्रेसी, why is democracy the better form of the government। क्वेश्चन आपको है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड कि why is the democracy called the better form of the government। तो what the logics और what the arguments और what the तथ्य जो फैक्ट जो दिया गया है, जो पॉइंट दिए गए हैं, this will refer to that the why the democracy is a better form of the government। या पूरा का पूरा तथ्य जो है आपको बताएगा आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी is really the better form of the government than any other alternative form of the government। यह जो तथ्य इसमें दिए गए हैं वो ये बात को सिद्ध करेगा कि डेमोक्रेसी रियल में दूसरी यानी गवर्नमेंट की अपेक्षा सचमुच में बहुत अच्छा है, कोई भी इतना अच्छा गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं हो सकता है। कैसे, पहला पॉइंट देखिए, व्हाई डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का फर्स्ट आर्गुमेंट या फर्स्ट क्या बोलते हैं लॉजिक या फर्स्ट जो पॉइंट है वो समझिए। डेमोक्रेसी इसलिए बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है बिकॉज इट इज अकाउंटेबल फॉर द पीपल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। समझ गए, यह अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी इज द अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, अंडरस्टूड और नॉट, क्या गलत है क्या सही है, जनता का भला कैसे होगा और क्या होगा, उनके क्या कष्ट हैं, इन सारे असुविधाओं का, सारे दुख और कष्टों का ख्याल हमारा डेमोक्रेसी के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रखती है, जिससे अन्य तरह का अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं रखती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखती। हाउ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर द अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कैसे जनता के प्रति वफादार है, या जनता के लिए गवर्नमेंट है, या जनता के प्रति उत्तरदायी है, कैसे रीजनेबल है, आंसरेबल है। हाउ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज आंसरेबल फॉर द पीपल। अगर मान लो कि कोई एक व्यक्ति भूखे मर जाता है आपके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, तो क्या आपको लगता है कि उस पार्टिकुलर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या उस पार्टिकुलर स्टेट के मालिक को जवाब नहीं देना पड़ेगा? नहीं जी, बोलिए। अगर कोई व्यक्ति, आपके स्टेट का कोई व्यक्ति या आपके आसपास का कोई व्यक्ति भूखे मर जाता है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जनता सरकार को कितना खींचातानी करती है। हमारी मीडिया जो है या हमारे देश की जो पत्र पत्रिकाएं हैं या जो भी इसके क्या बोलते हो क्रिटिसाइजर्स हैं या जो भी क्या बोलते हो जनता तक मैसेज देने वाले हैं, सोर्स ऑफ क्या कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, क्या वे चुप बैठते हैं क्या? हाँ बोलिए। कोई भी व्यक्ति अगर भूखे मर जाता है, किसी भी व्यक्ति को अगर मान लो कि सरकार की लापरवाही की वजह से अगर मौत हो जाती है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि रेनी सीजन में पटना वगैरह का, मुंबई वगैरह का केस, खुद आपके स्टेट का केस, पटना का पिछले वर्ष का केस देखा होगा आपने कि बरसात के रेनी सीजन में क्या हुआ, सरकार के म्युनिसिपैलिटी के लापरवाही से क्या हुआ कि एक महिला जो है मेन जो रोड में जो होल छोड़ा हुआ होता है उससे उसके ढक्कन नहीं लगने की वजह से वह किसी चीज के लिए गई पास के दुकान में और पानी से भरा होने की वजह से समझ नहीं पाई और अम्ब्रेला ली हुई थी और वैसे ही वो महिला जो है उस मेन हॉल में चली गई, अम्ब्रेला ऊपर रह गया, मोबाइल भी साथ में चला गया। हाँ बताइए मुझे, तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो उस समय का तत्कालीन गवर्नमेंट जो भी रहा,
चाहे हमारे नीतीश जी रहे या जो भी रहे या आज भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन पे आरोप प्रत्यारोप बिना लगाए हुए लोग छोड़ दिया क्या? हाँ, हमारे मीडिया या हमारे क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन या मैसेज देने वाले जो भी हैं, क्या आपको लगता है कि इन पे आरोप प्रत्यारोप बिना लगे हुए रह गया? दिस वाज द क्या केयरलेसनेस ऑफ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। बिहार के गवर्नमेंट के केयरलेसनेस मानी जाएगी? सड़क दुर्घटना में किसी एक आम इंसान का, कॉमन इंसान का जान चला जाना, तो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं थी, तभी तो ऐसा हुआ। अगर जनता के प्रति अकाउंटेबल होती तो क्या गवर्नमेंट के जितने भी अंग हैं, चाहे उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, वे क्यों नहीं इसकी देखभाल किया? वहां का डीएम क्यों नहीं समझे इस चीज को? वहां के लोकल गवर्नमेंट इस बात को क्यों नहीं समझे कि ये क्या बोलते खुला ओपन मेन होल के होने की वजह से क्या होगा, किसी इंसान का जान जा सकता है। तो यानी कि इस बात को तथ्य साबित करता है कि यहाँ पे जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं थी ये गवर्नमेंट। अंडरस्टूड दिस? हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है जी? जो बताया जा रहा है वो समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. अभी अगर मान लो कि कोरोना वायरस की केसेज आपने देखा 1 बरस 2 बरस तक लगातार, अभी क्या बोलते प्रेजेंटली इट इज ऑल्सो परसिस्टिंग और कंटिन्यूइंग ऑन। अभी भी ये गोइंग ऑन है। अगर ऐसे हालात में अगर बहुत से लोग मारे गए या बहुत से लोग मर गए, चाहे जिस कारण से मरे, आप तो जानिए रहे हो, ईच एंड एवरीवन नोज अबाउट दिस फैक्ट। मेनी मोर पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स और व्हाट यू कैन से दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो अगर ऑक्सीजन प्लांट की वजह से ऑक्सीजन के बिना किसी इंसान का जान गया, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट वाज नॉट अकाउंटेबल फॉर द पीपल और द पीपल्स लाइफ। जनता के जीवन के प्रति वो वफादार नहीं थी, उससे कोई मतलब नहीं था। यानी यहाँ पे सरकार की नाकामी इस बात का स्पष्ट करती है। नहीं जी, समझ रहे हो जी? Yes, sir. Yes, sir. तो यही बताना चाहता है इसमें आर्गुमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है। अगर नहीं हुई तो तुरंत हो हल्ला चालू हो जाएगा। दूसरे सुबह से मालूम चलेगा कि गवर्नमेंट की खींचातानी चालू हो गई। अंडरस्टूड और नॉट? उसकी एब्यूजेज निकालना लोग शुरू कर दिए, उसके विरोध में कई तरह के आर्गुमेंट्स देना शुरू कर दिए। हमारे मीडिया चैनल्स या जितने भी क्या बोलते हो चैनल्स हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, दे ऑल विल स्टार्ट वोमिटिंग अगेंस्ट द कंसिस्टिंग गवर्नमेंट और द कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट के आप देखते हो कि उस गवर्नमेंट के डिसफेवर में कितने तरह के, कई तरह के आर्गुमेंट्स चालू हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? व्हाई इट इज सो? व्हाई द पीपल स्टार्ट गिविंग द Good अगेन evening, sir. आर्गुमेंट्स? हाँ जी, Good evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत सवेरे आए, क्या बात है जी? हाँ, वो 4 बजे से तो क्लास ही था। 4 बजे से था? हाँ, नो सर। आज 3 बजे से न था मैसेज जी। हाँ, मैसेज नहीं देखे थे। आज आप टेंशन मत लीजिए, कल से 4 बजे से ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एकदम क्या बोलते हो बेफिक्र होकर के सोइए। एक ही बार आप लोगों को टाइम आएगा, कोई लफड़ा नहीं रहेगा कि आज क्लास 2 बजे से होगी, 2:35 से होगी, 2:40 से होगा, 3 बजे से होगा, 3:10 से होगा। ये सब मैसेज वैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दिन भर सोइए और एक ही बार एकदम 4 बजे का अलार्म लगा करके सोइए और डायरेक्टली 4 बजे उठ करके डायरेक्टली एकदम ऑफलाइन क्लास में। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन क्लास नहीं होगा तो सर? नहीं जी, क्या अब दिक्कत है? ऑफलाइन में दिक्कत हो जाएगी क्या? यस सर, अभी गांव पे हैं। अभी नहीं गांव सर। में है? यस सर। बताइए, सारी दुनिया गांव छोड़ छोड़ करके शहर की तरफ भाग रही है और अभी तक आप नाउ ऑनलाइन नहीं होगी तो? नहीं ना होगा जी। अब कहाँ से होगा? अब जब ऑफलाइन जब क्लास शुरू हो गया तो फिर ऑनलाइन कहाँ से होगा बताइए? ट्राई टू कम इन द सिटी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेटिंग फॉर यू, each and everything now has been open. Understood this?
इसलिए ट्राई टू कम इन टाउन, शहर में आइए। Yes, sir. ठीक है, तो आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी वाज गोइंग ऑन, अंडरस्टूड और नॉट। मैं इससे रिलेटेड आपको बता रहा था, आर्गुमेंट्स बता रहे थे कि क्या वजह है कि व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दैट द 1958 ड्यूरिंग 1958 और 1961, ठीक है, 1958 से 1961 के बीच में, यानी कि लगभग 3 वर्षों के काल में, है ना, हाउ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन चाइना, it means the people of China suffer a lot during the famine, which took the more than the 3 crore people life in China. Get about this, समझिए जरा कि चाइना में एक इतनी बड़ी फेमाइन आई, इतनी बड़ी अकाल सी स्थिति उत्पन्न हो गई, इतनी बड़ी वहां पे क्या कह सकते हैं कि भूखमरी की सिचुएशन पैदा हुआ चाइना में 1958 से लेकर के 1961 के दौरान, कि मोर देन 3 crores ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, दे वर अनएबल टू फीड देयर ऑन द, क्या कह सकते हैं, स्टमक, दे वर अनएबल टू मेंटेन द ब्रेड एंड बटर। व्हाई द फॉर्म ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट डिडंट व्हाट यू कैन से arrange all the things for those of the 3 crore of the people? Why the form of the government in China were not accountable for the life of those of the 3 crore of the people? Why they were not having any meaning or the connection with the common people's life? If in the same year, during the same year, the form of the government in India, or the India was also facing, India was not having also the better position or the better situation. It has not the well, क्या कह सकते हैं, situation of the economy. But even though the government of India was much more accountable for the people, it means the form of the government in India was what, having the responsibility to maintain the food security. It means the Chinese government were not arranging or didn't arrange the food security for the future of the people of China. And that is why at the time of the drought or the disaster, or you can say the famine or any type of the, क्या कह सकते हैं कि एक ऑल ऑफ सडन होने वाली जो घटनाएं हैं, ऐसे हालात में क्या बोलते हो कि चाइना की गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं उठाया, या अर्लियर वे लोग कोई ऐसा प्री प्लानिंग नहीं कर रखे थे, तो अचानक भूखमरी फैली, तो चाइना का 3-3 करोड़ देश की जनसंख्या जो है यूं ही मौत के मुंह में चली गई। जबकि सेम ईयर में भारत देश में भी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। इंडिया वाज नॉट लीडिंग द वेरी बेटर सिचुएशन इन द फील्ड ऑफ द इकोनॉमी, बट इट वाज हैविंग द प्री प्लानिंग, द फूड सिक्योरिटी, इट वाज बीइंग instructed by the sense of the food security. If such type of the vipatti or the disaster or the calamity will come to China, so what the government of India will do? They will have to arrange earlier each and everything, and that is why it just stops or the, what you can say, save the people of the persons. And whenever the such type of the disaster come or the calamity come to India, now the form of government of India now used to give the security to the people. So this refers to the form of the government. Democracy is a quite accountable form of the government for India. समझ में आया जी? Now understood? Tell me now. Yes, sir. अगर चाइना में प्रेस की आजादी होती, जनता के एक्सप्रेशन की आजादी होती, उसके न्यूज़पेपर्स, उसके मीडिया चैनल्स को अगर फ्रीडम होता क्रिटिसाइज करने के लिए, या किसी भी दूसरे अन्य तरह के आगे क्या बोलते हो अपोजिशनल पार्टी का रोल होता, बहुत अच्छा रोल होता, तो they might have criticized the consisting form of the government in China. They would have influenced the current or the present form of the government in China. They might have changed the form of the government in China, but the China didn't have the democratic form of the government. Understood or not? That is why they are not accountable for the people's life. इसलिए जनता के जीवन के प्रति उनको कोई मतलब नहीं रहा।
जो मर रहा है मरने दो। समझ रहे हो जी मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन क्या इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए संभव है? अगर ऐसा करता है इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर ऐसे ही छोड़ दे, लोगों को मरते हुए छोड़ दो, जैसे अभी हाल फिलहाल की स्थिति में कोरोना वायरस की स्थिति में अगर स्थिति बनी हुई है, अगर यहाँ अगर जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो, अगर फ्री में मुफ्त में अगर आप बहुत 2-4 महीने तक गवर्नमेंट ने देखा कि फ्री राशन कार्ड राशन दिया लोगों को, पीडीएस सिस्टम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को अन्न और क्या बोलते दूसरे अन्य तरह की चीजों का अरेंज करने का प्रयास किया। आखिर ऐसा क्यों किया? क्योंकि दे आर द अकाउंटेबल फॉर द पीपल। बोलिए, they are having the responsibility to provide the safety to the life of the people, but the Chinese government, which is not the democrat, is quite out of the क्या कह सकते हैं accountability to the people। उन्हें accountability से कोई मतलब ही नहीं है, उनको responsibility से कोई मतलब ही नहीं है। जनता मर रही है तो मरने दो, let them die। Understood this? So this is the क्या argument for the democracy, why democracy is the better form of the government। क्यों डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, इसके पक्ष में तर्क दिया गया है। समझ में आया सबको? बोलिए। यस सर। आज भर के लिए इतना ही रखो, बहुत काफी हो गया।